First of all, a double congratulations to all of you. क्यों double? First, because you have cleared your 10th board. आपकी लाइफ का फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पड़ाव आप क्रॉस कर चुके हो. छोटी मोटी बात थोड़ी ना है बोर्ड क्लियर करना, कितनी मेहनत लगती है. एंड यू हैव डन इट सक्सेसफुली. सो फर्स्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस. सेकेंड, क्यों? Because you have chosen the most happening stream out of all three streams, that is the commerce stream. Why it is an happening stream? Because it deals with money. And honey, the world is all about money. And that's the second congratulations. Now when you have come to commerce stream, you will be dealing with money, you will be dealing with business, you will be dealing with economy and so many new things. अब तक आप जो भी पढ़े हो, मे बी बोरिंग से फ्रेंच रेवोल्यूशन, खड़ूस सा हिटलर, कभी ना समझने आने वाले हाइट एंड डिस्टेंसेस को, वो फिजिक्स के फॉर्मूलाज एंड ऑल, अब उन सब से आपकी जान छूट गई. यू विल बी डीलिंग हियर विथ ऑल प्रैक्टिकल थिंग्स विच आई एम श्योर यू विल लव इट. अब तक आपका रिजल्ट जो भी रहा हो, it doesn't matters because what you will be learning in your 11th class will be totally new. अगर आप स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छे से अटेंशन पे करके बहुत अच्छे से थिंग्स को समझने की ट्राई करोगे, your result definitely would improve. Hello everyone and welcome to the Commerce Element, your one-stop destination for all your commerce needs. To begin our 11th class session, we will start with accountancy syllabus and we will go through the first chapter of accounts, that is introduction to accounting. Now accounts जब आप बहुत basic से चालू कर रहे हो, there are certain terms which you need to understand. See, in this class accountancy में आप जो भी कुछ पढ़ोगे right from today, that is very much new for you. So don't give much stress to your mind, just go with the flow. अब ये समझा तो उससे क्या होगा, आगे ये कहाँ पे अप्लाई होगा, इसका क्या करने का होगा. Don't think of all such things, just go with the flow. And we are starting the flow with the first technical term, that is bookkeeping. Now जब आप 11th class में स्कूल में जाओगे, you will have to deal with different subjects. आप हर एक सब्जेक्ट के लिए different नोटबुक्स बनाओगे. जो भी सब्जेक्ट का टीचर आपके क्लास में क्लास लेने आएंगे, वो सब्जेक्ट की नोटबुक निकाल के you will record as per the teacher's instruction. Once first period is over, वो नोटबुक बंद करके you will take the second period's notebook out. Second period वाले टीचर आपको जो भी इंस्ट्रक्ट करेंगे, you will write the things in second period's notebook, right? Same thing happens in accounts also. Accounts में बहुत different type के transactions होते हैं. Like accounts में आप कभी purchase करोगे, उसको record करना होगा. कभी आपके firm ने sales किया, उसको record करना होगा. कभी आपने cash लिया या cash दिया, उसको record करना होगा. तो these are different types of transactions. Now what is the task of bookkeeping? Bookkeeping के अंडर में आप different कैटेगरी के transactions को identify करोगे और उसको ढंग से अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करोगे. अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये ट्रांजैक्शन तो परचेज का है, you will open purchase book and record the transaction there. आपको लगेगा ये तो मैंने किसी को सेल किया, ये तो ट्रांजैक्शन सेल का है, you will open sales book and record the transaction in sales book. That is what we call is bookkeeping. So let's technically see what is the meaning of bookkeeping. Bookkeeping is an art of identifying. आप identify करोगे, हाँ ये तो transaction purchase का है, so let's record in purchase book. आप identify करोगे इस transaction में तो कैश की लेती देती हो रही है, मतलब ये कैश का transaction है. So identify करना is also an art and bookkeeping is an art of identifying and recording. Identify करके छोड़ थोड़ी दोगे, आप उसको relevant book में record करोगे. तो that is recording. किसका recording and identification?
फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर। जो भी बुक्स में रिकॉर्ड करोगे सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड करोगे, राइट? ऐसे थोड़ी बुक का जो भी पेज खुला उसमें हमने रिकॉर्ड कर दिया, बंद कर दी बुक, नेक्स्ट टाइम अगेन जो भी पेज खुला उसमें हमने रिकॉर्ड कर दिया। यू वोंट डू लाइक दैट, राइट? सेम थिंग इन अकाउंट्स ऑल्सो। जो भी ट्रांजैक्शंस हम रिकॉर्ड करेंगे वी विल रिकॉर्ड देम इन अ वेरी सिस्टमैटिक मैनर। वाई साइंटिफिक मैनर? बिकॉज अकाउंट्स के भी कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, अकाउंट्स के भी कुछ फंडास होते हैं। वो प्रिंसिपल्स को, वो फंडास को ध्यान में रख के वी विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस एंड thus we will record them in a scientific manner. अब आपका एग्जाम्पल लो तो आपने टीचर को आइडेंटिफाई किया, ये टीचर तो इकोनॉमिक्स वाला है, तो चलो इकोनॉमिक्स की बुक खोलो एंड इकोनॉमिक्स के टीचर जो भी इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको रिकॉर्ड करो। बुक बंद कर दी, नेक्स्ट पीरियड, ये टीचर तो बिजनेस स्टडीज वाला है, बिजनेस स्टडीज के टीचर को आइडेंटिफाई करके बुक ओपन की, रिकॉर्ड किया, रख दिया। अब खाली आइडेंटिफाई करोगे टीचर को और उनके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अगर आप रिकॉर्ड करोगे तो उतने काम से थोड़ी ना आपका रिजल्ट आएगा, आपको कुछ और मेहनत करनी पड़ेगी, राइट? सेम थिंग हैपेंस इन बुक कीपिंग ऑल्सो। खाली आइडेंटिफाई करके रिकॉर्ड करके रख दोगे तो आपको आपके बिजनेस के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपका जैसे पास एंड फेल के टर्म्स में रिजल्ट होता है वैसे बिजनेस का रिजल्ट विल बी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो खाली आइडेंटिफाई एंड रिकॉर्ड करने से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो पता नहीं चलेगा। सो उसके लिए यू हैव टू गो वन स्टेप बियॉन्ड बुक कीपिंग, दैट इज व्हाट वी कॉल अकाउंटिंग। अब ये अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉर्डिंग। ये ब्लू से क्यों लिखा? बिकॉज दैट इज व्हाट वी यूज टू डू इन बुक कीपिंग। तो अकाउंटिंग में बुक कीपिंग वाली दो चीजें तो होती ही है। अपार्ट फ्रॉम दिस टू थिंग्स विच वी डिड ऑलरेडी हियर, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स ऑल्सो जो हम अकाउंटिंग में करते हैं, एंड दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, preparing records and communicating them to concerned parties. ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करोगे, ट्रांजैक्शन को प्रॉपरली रिकॉर्ड करोगे, फिर ट्रांजैक्शंस की समरी बनाओगे, समरी को एनालाइज करोगे, इंटरप्रेट करोगे, उसके बेसिस पे आप रिपोर्ट्स बनाओगे एंड रिपोर्ट्स को आप कंसर्न्ड पार्टी को डिलीवर करोगे। ये सब कुछ कैसे होता है आगे आगे जैसे हम अकाउंट्स के सिलेबस में प्रोसीड करेंगे यू योरसेल्फ विल कम टू नो। फिलहाल यू जस्ट रिमेंबर दीज वर्ड्स, दैट इज मोर देन इनफ। बहुत ज़्यादा आपने छोटू से दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना, दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू इन द बिगिनिंग ऑल्सो। सो अकाउंटिंग इज वन स्टेप नेक्स्ट टू बुक कीपिंग। अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, रिकॉर्ड कैसे करोगे, समराइज कैसे करोगे, एनालाइज, इंटरप्रेट कैसे करोगे? आपको तो कुछ आता ही नहीं। तो आपको वो सारी चीज़ें करने का नॉलेज जहाँ से मिलेगा दैट इज व्हाट वी कॉल्ड इज अकाउंटेंसी। दैट इज द नेम ऑफ योर सब्जेक्ट एज वेल, एंड thus you will be getting the knowledge of all these things once you are studying this subject. So what is accountancy? Accountancy is the systematic knowledge of accounting. ये सारी चीज़ें जो हम अकाउंटिंग में करते हैं वो कैसे करेंगे उसका बहुत सिस्टमैटिक वे में अगर आपको कोई नॉलेज देता है तो दैट थिंग इज अकाउंटेंसी। आई होप दिस 3 terms are clear. Moving on further with difference between bookkeeping and accounting. Now, what is the scope of bookkeeping? It is just limited to identifying and recording that we did here also. And what is the scope of accountancy? Identifying, recording, summarizing, analyzing, interpreting, preparing records and communicating. So this is what we did in accounting. सो अकाउंटेंसी का स्कोप बहुत वाइड है, आप उस पर बहुत सारी थिंग्स को कवर करते हो।
जबकि बुक कीपिंग का स्कोप बहुत नैरो है, बिकॉज यू जस्ट डू दिस टू थिंग्स ओवर हियर. सो इन स्कोप यू कैन राइट वन मोर थिंग, दैट द स्कोप ऑफ bookkeeping is narrow, whereas the scope of accounting is very broad. The second point of difference is stage. जब आप बुक कीपिंग करते हो, यू जस्ट डील विद द प्राइमरी स्टेज, बहुत ही प्राइमरी लेवल का काम करते हो, बिकॉज यू जस्ट डू दिस टू थिंग्स. बट अकाउंटिंग इज नोन एज सेकेंडरी स्टेज. वंस बुक कीपिंग का काम ओवर हो गया, वंस आपने ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई कर लिया, रिकॉर्ड कर दिया, देन सेकेंड स्टेज में आप जाओगे एंड यू विल डू रिमेनिंग फर्दर थिंग्स. सो स्टेज के टर्म्स में बुक कीपिंग आपका प्राइमरी स्टेज है, अकाउंटिंग इज द सेकेंडरी स्टेज. नाउ ऑब्जेक्टिव, हम बुक कीपिंग क्यों करते हैं, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव? इट इज सिंपली टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स. सिंपली सिस्टमैटिक वे में रिकॉर्ड्स मेंटेन करने के इंटेंशन से हम बुक कीपिंग करते हैं. तो फिर हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं? टू फाइंड आउट द रिजल्ट्स, दैट इज प्रॉफिट और लॉस, एंड कम्युनिकेट इट. खाली सिस्टमैटिकली रिकॉर्ड मेंटेन करने से आपको रिजल्ट पता नहीं चलेगा. प्रॉफिट या लॉस के टर्म्स में रिजल्ट को जानना है तो आपको ये सारी थिंग्स करनी पड़ेगी. And result जानना is very important for any businessman. It is not only important for businessmen, but it is important for other concerned parties also. आपके बिजनेस को जिसने भी किसी ने लोन दी है या जो भी कोई लोन देना चाहता है, आपके बिजनेस को जिसने भी किसी ने उधार पे माल दिया है, आपके बिजनेस में जो भी कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो सारे will be your concerned parties. And all your concerned parties also will be interested in knowing the results of business. तो that is the objective of accounting कि results find out करेगा, और जिसको भी किसी को result की ज़रूरत है उन parties को result को communicate करेगा. Then level of skill, it doesn't need much of special skill, because आपको खाली identify करना है, record करना है, बहुत ज़्यादा स्किल बिल नहीं होगी तो चलेगा. बट हियर आपको इतना कुछ करना है, सो ऑफ कोर्स यू विल नीड सम स्पेशल स्किल्स. देन नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस. इसको परफॉर्म कौन करेगा, बुक कीपिंग कौन करेगा? इट कैन बी परफॉर्म बाय नॉट सो ट्रेन्ड स्टाफ ऑल्सो, बिकॉज खाली ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, उसको ढंग से किसी बुक में रिकॉर्ड करना है. बहुत ज़्यादा हाई फाई ट्रेनिंग वाला स्टाफ नहीं भी होगा, क्लरिकल लेवल का स्टाफ होगा, दैट ऑल्सो विल बी एबल टू परफॉर्म द बुक कीपिंग फंक्शन. जबकि अकाउंटिंग, बिकॉज इतना कुछ करना है, हर किसी के बस की बात थोड़ी ना है. सो हियर यू विल नीड ट्रेन्ड स्टाफ टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग. And the last one is results of business in terms of profits and losses. बुक कीपिंग करने से यू कैन नॉट नो द रिजल्ट. खाली आपने तो ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई किया, रिकॉर्ड किया, उतने से रिजल्ट प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ वो पता नहीं चलेगा. फॉर दैट यू हैव टू गो वन स्टेप बियॉन्ड, दैट इज अकाउंटिंग, जिसके बेसिस पे यू विल बी एबल टू कम टू नो द रिजल्ट ऑफ बिजनेस. So these are certain points of difference between bookkeeping and accounting. I hope whatever we discussed today is very much clear to you. In your next session, we will again proceed further with the same chapters, another topic. Till the next session, stay tuned and goodbye.